Assalamu alaikum girls, hope you all will be good. Today we will start our chapter number 20, that is all about the chromosome and DNA. This is very important chapter regarding that we are going to start the process of inheritance and how genes express themselves in the preceding chapters. But before that we must have a comprehensive knowledge about what are chromosomes, where genes are located, and what is the role of genes and how they are going to express in the further generations and how crossing over occur and so on. There is immense knowledge about the inheritance and the pattern of inheritance and so on. Okay, but before that we must know, as you know, that we should know what are the basic subunits through which the whole process is going to be अकर. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब क्रोमोसोम्स को देखेंगे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स. दीज आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ DNA and histone protein. It is basically the chemical composition of chromosome, and apparently chromosomes have two main parts, the centromere and sister chromatids. Sister chromatids एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, टू आर्म्स होते हैं विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एट अ certain point that is called centromere. The location of centromere may vary in certain chromosomes. ठीक है, सबसे पहले the scientist who come in exposure with the chromosomal study was the German embryologist Walter Fleming, who first examined rapidly dividing cell in salamander larva. ठीक है, after that discovery of chromosomes occur and chromosomes found in all living organisms, and the number of chromosomes were very specific in every living species. Okay, either they are animals, either they are plants, either they are different plants, different animals, we being human or also belong to kingdom Animalia, so we also included in animal kingdom. तो जितने भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they do have chromosome, but the number of chromosome vary differently in each species, and basically it is the आप कह लें कि signature of every species कि every species have a particular number of chromosome. For example, if animal and plant both have 48 or 47 number of chromosome, it doesn't mean that animal will behave like plant or plant will behave like animal. The genetic expression will be different. Number of chromosome between them might be similar, but the genetic expression will be different. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, apparently, as I already have told you, that chromosome have a central constricted area that is known as centromere, and along this centromere the two sister chromatids are attached with the centromere. If we observe in ultra microscopic studies, then we came to know that the sister chromatids are made up of DNA double helix, and in each helix histone proteins are embedded. ठीक है, so basically the composition of chromosome DNA plus histone proteins. ठीक है, तो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप. जैसे हम डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी को नाम देते हैं लाइक फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एटसेट्रा, सेम लाइक द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप. कैरियोटाइप में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इन डिफरेंट स्पीशीज हाउ मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. Chromosome number will always be present in the form of pairs. ठीक है, they will always be present in the form of pairs. Why there is need to be present in the form of pairs? जब हम inheritance का चैप्टर पढ़ेंगे, genes के ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि why they are present in the form of pairs. ठीक है, और अभी हम ये चीज़ एग्जाम्पल में डिस्कस भी करते हैं कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं.
सबसे पहले कैरियोटाइप में हम देखते हैं कि अ पर्टिकुलर स्पीशी उसके सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और वो जितने भी नंबर हैं उनके पेयर कितने बनते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड इन क्रोमोसोम and at which point of chromatids in between the chromatids at which point centromere is present। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सेंट्रोमियर पोजीशन में भी चेंज इन सर्टन ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स भी हम देखते हैं, ठीक है। तो हम उसमें ये भी देखते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, क्रोमेटिड जो हैं उनकी आर्म लेंथ क्या है, इन पे कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं और उन जीन्स के कितनी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, वो कैसे एक्सप्रेस होंगी, उनकी रिकॉम्बिनेशन कैसे होगी। पर जैसे हमने पर्टिकुलर डिसऑर्डर को ट्रीट करना हो तो कैरियोटाइप के थ्रू हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज जिसके लिए जीन एबनॉर्मल हुआ है वो किस क्रोमोसोम के किस आर्म पे किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कैरियोटाइप की स्टडी में आती हैं, ठीक है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी के एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है उस वो कौन से स्टेन से जो है वो कौन से डाई से स्टेन होता है और हमारे लिए विजिबल होता है और उसको हम स्टडी करना हमारे लिए ईजी होता है। वेरिएशन अमंग क्रोमोसोम में आ जाती हैं क्रोमेटिड लेंथ की डिफरेंसेस, सेंट्रोमियर के पोजीशन के डिफरेंसेस, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है सेंट्रोमियर लेंथ ऑफ क्रोमेटिड। फिर उसके बाद एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है कॉन्स्ट्रिक्शंस। कॉन्स्ट्रिक्शंस इज बेसिकली द हाईली कंडेंस्ड एरिया इन द क्रोमोसोम। ये जो सेंट्रोमियर है दिस इज बेसिकली द वेरी कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पर ये दोनों आर्म्स बहुत टाइटली अटैच होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस भी अपीयर होती हैं लेकिन ज़्यादातर क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती हैं। जिस पॉइंट पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है कभी भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन उस पॉइंट पर नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज़ वेरी थिन, ये इतनी ज़्यादा आप कह लें कि टाइटली बाउंडेड नहीं होती और ये रेयर होती है। जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है जिसको हम सेंट्रोमेरिक कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं वो सारे क्रोमोसोम्स में बहुत टाइटली बाउंडेड और डेंसली इंटरलॉक्ड हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि द नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। तो दीज ऑल, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट कैरियोटाइप, देन यू हैव टू टेल दैट क्रोमोसोमल स्टडी इज कॉल्ड कैरियोटाइप and we used to study different features related to chromosomes. For example, these all features we used to study in karyotype. Okay, as I already told you that first German embryologists came in exposure that there are rapidly dividing cell in salamander larvae. Why they are rapidly dividing? Because of mitosis. And what is then he was curious about what the process mitosis is. उसके बाद फिर हम जैसे आपके सामने वो सेल साइकिल आए, मियोसिस, माइटोसिस, वो भी हम इंशाल्लाह 25th चैप्टर में जो है वो आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड क्रोमोसोम नंबर डोंट वेरी इन एनी स्पीशी, ठीक है। For example, Penicillium have only one pair of chromosome. Ferns have 500 pairs of chromosome. Mosquito have 6, honeybee have 32, corn have 20, sugarcane have 80, and frog have 26. Mouse 40 and human have 23 pair of chromosomes. Human being में 23 pairs होने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर total number of chromosome कितने हैं? 46, ठीक है। 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, 23 पेयर्स। 22 जो हैं उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। 23 पेयर्स जो 22 पेयर हैं उन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं जो सेम होते हैं, और जो 23rd पेयर है इन केस ऑफ मेल दिस इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि this chromosome will determine either the newly fertilized cell will be girl or a boy, okay। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि centromere position may vary in different chromosomes, ठीक है। ये within the species भी वेरी करती है, like we have 23 pair of chromosome, it may vary in different chromosomes, okay। फर्स्ट अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक, इसमें ये जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है और जो आर्म्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, दूसरा आर्म उसके पीछे, ठीक।
उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये जो आपका सेंट्रोमियर है इट इज प्रेजेंट जस्ट वेरी क्लोज टू द टिप। ये टिप है क्रोमोसोम की और ये इसके बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट है। इस कंडीशन को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन है जिसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये नियर टू द सेंटर, इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर बट नियर टू द सेंटर। ये आई शेप में भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है जिसे वी शेप कहते हैं, ये उल्टा वी आप कह लें बना हुआ है। मेटासेंट्रिक इसमें एग्जैक्टली सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो अपनी पोजीशन के हवाले से आई शेप में, जे शेप में, ये वी शेप में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको भी बताई है कि क्रोमोसोम्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन आपको पता है कि डीएनए जो है इट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। हर हेलिक्स के जो स्ट्रक्चर की आपको मैंने बताया था उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं। फिर उसके बाद उसकी पूरे हेलिक्स की कितनी लेंथ होती है, बेसिस के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, यू ऑलरेडी हैव लर्नड इनटू द फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 2 जहाँ पर हमने डीएनए एंड आरएनए पढ़ा था, ठीक है। हर हेलिक्स में, ठीक है, हर हेलिक्स में 8 नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पड़े होते हैं और इस पूरे एरिया में 200 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, but the total number of chromosome which are present in particular place, these are known as chromatin material, ठीक है। chromatin material जो है it is of two type, euchromatin and heterochromatin। ये देखें heterochromatin and euchromatin। इससे पहले इसको बताने से पहले हम एक बात ये भी डिस्कस कर लें कि जो क्रोमोसोम्स हैं we can only study chromosomes only we can study chromosomes on the dividing cell stage, जब वो डिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब क्रोमोसोम्स नॉर्मली सेल के अंदर पड़े होते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो दे आर जस्ट लाइक थ्रेड, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी क्रोमोसोम एट दैट सिचुएशन, बट व्हेन सेल साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट, क्रोमोसोम लेंथ गेट शॉर्टन एंड क्रोमोसोम गेट अपीयर, ठीक है। उस स्टेज पे हमारे लिए क्रोमोसोम्स को स्टडी करना इजी होता है और हम ज़्यादातर क्रोमोसोम्स को उसी स्टेज पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है? क्रोमेटिन द टोटल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब उस टोटल न्यूक्लियस मटेरियल में कुछ पोर्शन क्रोमेटिन का ऐसा होता है विच इज़ हाईली कंडेंस्ड, वो इस कदर एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर इंटरलॉक हुआ होता है कि वो अपना कोई जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं देता। लेकिन बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो हाईली कंडेंस्ड नहीं है उस पोर्शन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का क्या मतलब है? ट्रू क्रोमेटिन मटेरियल विच इज गोइंग टू एक्सप्रेस इन द फर्दर जनरेशन और इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इटसेल्फ, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज बेसिकली वो सिचुएशन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम जिसमें एक्सप्रेशन नहीं देता, और ये ज़्यादातर उन सेल्स में होता है जो सेल्स परमानेंटली डेड भी हो जाते हैं और वो आगे मतलब वो जैसे नर्व सेल्स हैं वो एक मतलब रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, उनके कभी भी जो है वो डिवीजन नहीं होती, उस डिवीजन की वजह से उनके डिवीजन का एक्सप्रेशन नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो बाकी सेल हैं नॉर्मली डिवाइड भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, उनमें जीन्स भी एक्सप्रेस होते हैं, इस वजह से वो यूक्रोमेटिन कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। कंपोजिशन हो गई है। और एक और बात कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। इनका पॉजिटिव चार्ज हमारे लिए इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है बैकबोन के अंदर, उसके साथ ही बड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से डुप्लेक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो इजीली स्टेबल फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है। इट ओनली separated in the case of DNA replication or cell division, right? Okay, this is all about your today's lecture. इसके अलावा छोटा सा एक पैराग्राफ है आपकी बुक के अंदर जिस पे जस्ट ये बताया हुआ है कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितना नॉलेज प्रेजेंट होता है।
कितनी बुक्स हों, उस बुक्स के कितने पेजेस हों और उस बुक्स के ऊपर कितने वर्ड्स हों, और अगर लेंथ ऑफ डीएनए को मिला के एक लंबा सा डीएनए स्ट्रैंड बना लें तो वो हमारी अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन consult with me and sort it out whatever the problem you are facing. Okay, up to then, stay blessed. Allah Hafiz.